हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक. सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट a new topic of HVDC transmission second unit as per as your syllabus of electrical engineering 7th semester IKG PTU Kapurthala and the different university across the country. So guys, the topic is converters in HVDC transmission. So guys, before going to start this topic, I want to request you that if you are came first time in my channel, kindly subscribe my channel and share with your friends. Sir, if you are the faculty members of any engineering college across the country in Department of Electrical Engineering, so please subscribe my channel and share with your colleagues as well as students to get the advantages which I will represent in my lectures. So guys, I already told you that if you want to get more knowledge and detailed knowledge regarding the every topics delivered by me, you can refer these books written by great scholars and great professors जिन्होंने ये बुक लिखे हैं उनको आप फॉलो जरूर करें. As per as your semester examination concerns, I will give approximate nearby overall written material in my slide and explain every point as much convenience within a time duration of 15 to 20 minutes. So guys, starting of this topic, converters in HVDC transmission. First, we just give you some briefs regarding where what is the application of converters and where it is used. So guys, the first point is HVDC converters convert AC to DC and transfer the DC power. Then DC is again converted to AC by using inverter station. It means converter is a particular word when you are studying electrical drives and their control, and when you see the diagram of electrical drives, जब आप electrical drives का overall mechanism देखेंगे तो source के बाद जो पहला device होता है that is called converter, and that will convert the level of and the range of input as per as our requirement. So in the concern of HVDC transmission system की अगर मैं बात करूं, so here we have a two mode of conversion required. First mode is AC to DC, because our overall generation is in AC, so we require a rectifier. Then we will require DC to AC like as an inverter, because our overall utilization system based on a AC system. So guys, second point is HVDC system mainly consists of two stations. One is rectifier station and which transfer from AC to DC network. Another is inverter station which transfer from DC to AC network. It means HVDC have a two conversions during their operation. First AC to DC, that done by rectifier, and again DC to AC, that is done by inverter. For all HVDC converter, 12 pulse bridge converters are used. Same converters can act as both rectifier as well as an inverter depending on the firing angle. अब आपको जब मैं थायरिस्टर वॉल्व पढ़ा रहा था उस टाइम पे भी मैंने ये चीज बात करी थी, और जब मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर लूंगा या आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो वहां भी एक टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड फायरिंग एंगल पॉइंट आता है एक अपना डिस्कशन के दौरान. तो हमें पता है कि थायरिस्टर को हम डायरेक्टली टर्न ऑन या टर्न ऑफ नहीं कर सकते. वी नीड टू फायर्ड एट दैट इज आल्सो नोन एज ट्रिगर्ड बाय फायरिंग एंगल अल्फा. उसके थ्रू हम इसको फायर करते हैं. क्लियर है? तो जो फायरिंग एंगल अल्फा है इसके दो तरह से इसको हम ऑपरेट कराएंगे. उसी दोनों के बेस पे एक ही सर्किट जो 12 पल्स कन्वर्टर सर्किट है हमारा, वो रेक्टिफायर की तरह भी काम करेगा और वो इन्वर्टर की तरह भी काम करेगा. If firing angle alpha is less than 90 degree, the converter act as an rectifier mode. It means अगर हमने फायरिंग एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री रखा है तो वो काम करेगा एज ए कन्वर्टर का, रेक्टिफायर का. और when if the firing angle alpha is greater than 90 degree but less than 180 degree,
द कन्वर्टर एक्ट इन इन्वर्टर मोड। इट मीन्स जो फायरिंग एंगल है उस एंगल के बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि दिस कन्वर्टर सर्किट इज आइदर रेक्टिफायर और इन्वर्टर। ये सारी चीजें हमें इसी के दौरान डिस्कशन में मिल जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कन्वर्टर स्टेशन का डायग्राम देखेंगे, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइस, दिस इज द डायग्राम ऑफ ओवरऑल 12 पल्स कन्वर्टर स्टेशन। एक हमारा डीसी कन्वर्टर स्टेशन है, उसमें आप देखिए क्या क्या है। पहले तो देखिए 3 फेज 50 हर्ट्ज की एक बस है, हम ये बस देख रहे हैं। इसके बाद हमारा वो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर की आप वाइंडिंग देखिए, स्टार प्राइमरी है, सेकेंडरी डेल्टा है, 3 फेज आ रहा है, तीनों अलग अलग फेज में गया। कन्वर्टर यूनिट अरेस्टर है ये, अगर मान लो किसी भी तरह का उसमें फॉल्ट आता है तो उसको रोकेगा। देन डीसी रिएक्टर्स है, डीसी पोल बस है, डीसी फिल्टर है। फिल्टर जनरली 3 टाइप के होंगे, डीसी फिल्टर भी होगा, एसी फिल्टर भी होगा। उसके बाद आप देखिए डीसी रिएक्टर्स लगे हुए यहाँ पे, जो हम लोग रिएक्टर्स लगाएंगे। एसी फिल्टर्स भी आपको दिख रहा है, डीसी फिल्टर्स भी दिख रहा है आपको। सर्ज कैपेसिटर्स भी है, ये जो स्विचिंग सर्ज अगर कोई होगा मान लो तो उसको ये अपने अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसका करेगा। डीसी लाइन अरेस्टर है, फिर जाके ये डीसी लाइन है। और अर्थ इलेक्ट्रोड आप देख रहे हो, ये अर्थ इलेक्ट्रोड इस तरह से। तो ओवरऑल जो आप डायग्राम देखेंगे तो आपको जनरली इसमें आएगा, पहला तो आएगा कन्वर्टर ट्रांसफार्मर, दूसरा आएगा फिल्टर्स और तीसरा आएगा आपका डीसी रिएक्टर्स। और उसी टाइप के 2-3 चीजें और होंगी जो कि हम आगे के लेक्चर्स, आगे के स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें ओवरऑल देखिए क्या हो रहा है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो हो रहा है। यहाँ पे हम एसी दे रहे हैं और आउटपुट में हमें डीसी मिल रहा है। बीच में बहुत सारे इक्विपमेंट को मिला के ये पूरा का पूरा कन्वर्टर यूनिट बनाया गया है। उसमें वो कौन कौन सी चीजें हैं, दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। तो आप ये डायग्राम देख लीजिए, दिस इज द क्लीनेस्ट डायग्राम ऑफ कन्वर्टर स्टेशन, एचवीडीसी कन्वर्टर स्टेशन। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टर ट्रांसफार्मर, जो मैंने बात करी, जो पहले आपने देखा था ना। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 1100 केवी का 1100 किलो वोल्ट का ये पहला एचवीडीसी ट्रांसफार्मर है जो डिजाइन किया गया था कन्वर्टर ट्रांसफार्मर के रूप। ये डायग्राम में आपको शो कर। तो देखिए क्या लिखा है, द कन्वर्टर ट्रांसफार्मर हैज 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा। पहला है 3 फेज 2 वाइंडिंग, जो स्कॉट कनेक्शन आपका होता है। 3 फेज हमारा प्राइमरी में है और वाइंडिंग जो उसके अंदर है वो 2 ही वाइंडिंग है। सिंगल फेज 3 वाइंडिंग, यानी सिंगल फेज के साथ हम 3 वाइंडिंग बनाएंगे। सिंगल फेज 2 वाइंडिंग, द वाल्व साइड winding are connected in parallel with neutral grounded. The leakage reactance of the transformer is chosen to limit the short circuit currents through any valve. तो शॉर्ट सर्किट को हम लोग कंट्रोल भी करते हैं इसके थ्रू। और ये हमारा 3 अलग अलग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, जिस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांसफार्मर की जो हमारी वाइंडिंग है, जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है, वो वाइंडिंग हमारा शो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द कन्वर्टर ट्रांसफार्मर्स आर डिजाइन टू विदस्टैंड डीसी वोल्टेज स्ट्रेस and increased AD current losses due to harmonic currents. ट्रांसफार्मर के अंदर जो हार्मोनिक्स करंट होगा उसको लॉसेस को उसको कम करने के लिए, जो इंक्रीज हो रहा है एडी करंट लॉसेस ड्यू टू हार्मोनिक करंट्स, उसको स्ट्रेस करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि विदस्टैंड डीसी वोल्टेज हमारा होता है। वन प्रॉब्लम दैट कैन अराइज इज ड्यू टू द डीसी मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर ड्यू टू अनसिमेट्रिकल फायरिंग ऑफ वॉल। जो हम थायरिस्टर की, जो हमारा थायरिस्टर वॉल्व जो लगा हुआ है, थायरिस्टर वॉल्व आप पिछले लेक्चर में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या है थायरिस्टर वॉल्व। वो जो थायरिस्टर वॉल्व लगा हुआ है उसमें जो उसके जो वेरिएशन हो रही है करंट की, उसमें जो मैग्नेटाइजेशन जो वैल्यू चेंज हो रही है उसकी फायरिंग एंगल के कारण, उसके कारण हार्मोनिक्स क्रिएट होता है आपके कन्वर्टर ट्रांसफार्मर में। तो उसके लिए भी एक हम लोग इसको स्टेबल हो जाए, उसके लिए हम लोग करते हैं ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू विदस्टैंड डीसी वोल्टेज स्ट्रेस। तो ट्रांसफार्मर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उस डीसी वोल्टेज को वो स्टैंड मतलब विदस्टैंड मतलब उसको वो बेयर कर सके। नेक्स्ट है आपका, इसके अलावा ये तो आपने देख लिया, ये ट्रांसफार्मर है। ये मैं जो आपको डायग्राम बता रहा हूँ, दिस इज द डायग्राम ऑफ फर्स्ट 11 केवी 1100 केवी 1100 वोल्ट डीसी ट्रांसफार्मर कन्वर्टर ट्रांसफार्मर। ये तो आप देख रहे हैं इसका डायग्राम जो है, जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं उससे इसका डिजाइन अलग होता है, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग ट्रांसफार्मर कर सकते हैं दैट विल बी दी आइदर
स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार या डेल्टा डेल्टा या स्टार स्टार, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है। बट इसमें इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन वाइंडिंग का नहीं होगा। इसमें जो वाइंडिंग का कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी 3 फेज 2 वाइंडिंग या सिंगल फेज 3 वाइंडिंग और सिंगल फेज 2 वाइंडिंग। क्लियर है? अगेन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द फिल्टर्स। डिफरेंट टाइप्स के जो फिल्टर्स है वो आपके इस सिस्टम में यूज में आते हैं। तो पहला देखो क्या है, पहला है आपका एसी फिल्टर्स। तो उस ऊपर मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स यूज्ड व्हिच आर। तो पहला जो एसी फिल्टर्स है तो ये क्या करता है, दीज आर पैसिव सर्किट्स यूज्ड टू प्रोवाइड लो impedance shunt path for AC harmonics current. Both tuned and damped filter arrangement are used. तो ये AC फिल्टर्स था, क्यों होता है आपने देख लिया। इसका रीजन है जो AC फिल्टर जो है वो प्रोवाइड कराता है लो इम्पीडेंस, यहाँ पे उसका वो हमारा जो है वो मिसप्रिंट है, यहाँ पे आज की जगह पे एल कंसीडर करिए। लो इम्पीडेंस शंट पाथ फॉर AC हार्मोनिक्स करंट, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लो इम्पीडेंस प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें सारा का सारा करंट जो हार्मोनिक करंट है वो उसी के थ्रू फ्लो हो जाएगा। और हमें पता है करंट ऑलवेज फ्लो इन लो रेजिस्टिव पाथ, तो हमें एक लो इम्पीडेंस प्रोवाइड कराता है शंट पाथ जो कि AC हार्मोनिक्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बोथ ट्यून्ड एंड डैम्प्ड फिल्टर्स अरेंजमेंट आर यूज्ड। दोनों तरह के हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो यूज में आते हैं। दूसरा है DC फिल्टर्स। दीज आर सिमिलर टू AC फिल्टर्स एंड आर यूज्ड फॉर द फिल्टरिंग ऑफ DC। जैसे AC फिल्टर्स AC हार्मोनिक्स को रिमूव करता है, उसी तरह से आपका DC फिल्टर जो है दैट विल रिमूव द DC हार्मोनिक्स। अब है आपका हाई फ्रीक्वेंसी RF रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑब्लिक PLC फिल्टर, जो प्रोग्रामेबल लॉजिकल सर्किट्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसके फिल्टर्स, और जो RF रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले फिल्टर्स है उसका। देयर आर कनेक्टेड बिटवीन द कन्वर्टर ट्रांसफार्मर एंड द स्टेशन AC बस टू सप्रेस एंड हाई फ्रीक्वेंसी करेंट्स। ये कहाँ लगाया जाता है, कनेक्टेड बिटवीन किसके किसके बीच में, कन्वर्टर ट्रांसफार्मर और जो AC स्टेशन का जो AC बस है उसके बीच में लगाया जाता है। एनी हाई फ्रीक्वेंसी करंट समटाइम्स सच फिल्टर्स आर प्रोवाइडेड ऑन हाई वोल्टेजेस। ये कभी कभी हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर। DC बस कनेक्टेड बिटवीन द DC फिल्टर्स एंड DC लाइन एंड ऑल्सो ऑन द न्यूट्रल साइड। मीन्स ये दोनों तरफ यूज होता है, AC के तरफ भी DC के तरफ भी, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी RF PLC फिल्टर। क्लियर है गाइज? तो नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कुछ और पैरामीटर्स है जो कि हमने कन्वर्टर स्टेशन में लगाए हुए हैं। तो पहला आपका रिएक्टिव पावर सोर्स। तो उसमें क्या कहा गया है, कन्वर्टर स्टेशंस रिक्वायर रिएक्टिव पावर सप्लाई दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्टिव पावर लोडिंग। अब कितना एक्टिव पावर लोडिंग है वो, क्या उसमें कोई इंपीडेंस हो रहा है क्या, अगर इंपीडेंस है तो वो इंडक्टिव है कि कैपेसिटिव है। तो अगर इंपीडेंस हमारा रिएक्टिव नहीं है तो उसमें रिएक्टिव पावर हमें देके उसको माइनस करना पड़ेगा। बट पार्ट ऑफ द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट इज प्रोवाइडेड बाय AC फिल्टर्स। ये किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, AC फिल्टर्स के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इन एडिशन शंट कैपेसिटर्स, सिंक्रोनस कंडेंसर एंड स्टैटिक VAR सिस्टम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ कंट्रोल। तो अब जहां तक इसको कंट्रोल करने की बात है, जब आप लोग पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में या पहले भी आपने पढ़ा होगा, एक टॉपिक आता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट टेक्निक। या आप मेरे पावर हाई वोल्टेज में पावर सिस्टम वाले लेक्चर में जाइए, वहां पे मैंने शंट एंड सीरीज कंपनसेशन टेक्निक बताई हुई है, व्हाई इट रिक्वायर्स और क्यों होता है, कहां पे होता है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। देन है आपका स्मूथिंग रिएक्टर। स्मूथिंग रिएक्टर क्या करता है, सफिशिएंटली लार्ज सीरीज रिएक्टर इज यूज्ड ऑन DC साइड टू स्मूथ DC करंट एंड ऑल्सो फॉर प्रोटेक्शन। The reactor is designed as a linear reactor and is connected on the line side, neutral side or at intermediate location. एक्चुअल में DC रिएक्टर जो है स्मूथनिंग रिएक्टर क्या करता है, जब हमारा DC आफ्टर इन्वर्टर के बाद कन्वर्टर जो हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है उसके आने के बाद जब हमारा उसमें आप देखते हैं कि DC हमारा आ गया DC के लाइन में, तो कुछ हार्मोनिक्स उसके अंदर होते हैं। तो इस हार्मोनिक्स को जो हमारा स्मूथनिंग रिएक्टर है वो उसको रिमूव कर देता है। साफ यहाँ लिखा है, रिएक्टर इज डिजाइन्ड एज ए लीनियर रिएक्टर एंड इज कनेक्टेड ऑन द लाइन साइड, न्यूट्रल साइड। ये कहीं पे भी लगा सकते हैं जहां पे DC हमारा आ रहा है। अब नेक्स्ट है DC स्विच गियर। तो DC स्विच गियर क्या है, इट इज मॉडिफाइड AC इक्विपमेंट यूज्ड टू इंटरप्ट स्मॉल DC करंट्स। ये क्या करता है, मॉडिफाई AC इक्विपमेंट्स है जो कि किसके काम आता है, इंटरप्ट रोकने के काम आता है स्मॉल DC करंट को। अगर स्मॉल DC करंट AC में इन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ये काम आता है।
नेक्स्ट है डीसी ब्रेकर्स और मेटेलिक रिटर्न ट्रांसफर ब्रेकर्स, MRTB जिसको हम लोग कहते हैं जनरली, आर यूज्ड if required for interruption of rated load current. In addition to the DC switchgear, AC switchgear and associated equipment for protection and measurement are also part of the converter station converter. तो इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, बट मेन ये जो मैंने सारे आपको पॉइंट बताए, दैट विल बी टू मच इंपॉर्टेंट फॉर योर HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम, अगर मैं सिंपल कन्वर्टर सर्किट की बात करूं उस केस में। तो आपने देखा रिएक्टिव पावर सोर्स किस तरह से अफेक्ट करता है, स्मूथिंग रिएक्टर की कहाँ जरूरत है, एसी फिल्टर की कहाँ जरूरत है, कन्वर्टर ट्रांसफार्मर की कहाँ जरूरत है और डीसी स्विच गियर की कहाँ पे जरूरत है। तो ये सारी चीजों को मिला के कंबाइन करके हमारा एक पूरा कन्वर्टर स्टेशन जो है वो तैयार होता है, जिसमें सारी चीजें लगी हुई रहती है, माउंटिंग रहती है। ठीक है, तो गाइज ये जो टॉपिक था आपका फर्स्ट टॉपिक था कन्वर्टर्स एंड देयर कंपोनेंट्स, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया इस लेक्चर में। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक बटन जरूर बनता है मेरी ओर से, तो आप प्लीज एक लाइक बटन जरूर दबाएं। और लास्ट में मैं गाइज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आपको बहुत सारी बेनिफिट वाले जो पर्टिकुलर मटेरियल्स हैं वो आपको कुछ दिन बाद में देना शुरू करूंगा, नवंबर फर्स्ट वीक के बाद में भी, दशहरा दिवाली के आसपास। और इसके अलावा मैं जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द ग्लोब, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर कलीग, क्योंकि ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है आपके पास जहां पे आपको अपने यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स के टॉपिक बाय टॉपिक आपको लेक्चर मिलेंगे। अदर कहीं पे भी आपको मिलेगा तो हो सकता है आपको 2-4 मिल जाए, या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा आपको एक भी चैनल पे अदर देन मी। तो गाइस जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के भी रहते हैं, थर्ड ईयर फाइनल के भी रहते हैं, वो मैं धीरे धीरे लेके आऊंगा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। बट बिफोर एग्जामिनेशन यू विल गेट ऑल दीज मटेरियल्स ऑन माय यूट्यूब क्लासेस। सो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।